Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss a third type for evaluation of homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. So we know that the differential equation which is the homogeneous and linear, of course the partial differential equation has a symbolic form in given in this way, and its solution is given by complete solution is nothing but the complementary function plus particular integral. Okay, so the method for finding the complementary function is same for all the problem, only the particular integral is depends upon the nature of the function which is present on right hand side. So we already discussed the two types. First type is the function in the right hand side is of the form this, that is the exponential function, and function on the right hand side is of the form cos ax plus by or sin ax plus by. So we already discussed the two cases whose videos lecture are available on my YouTube channel, and you can watch how to solve such type of linear partial differential equation when the term involve exponential and cosine or sine function. So in today's lecture, we will discuss the evaluation of particular integral of those equation where the terms on the right hand side of the equation is of algebraic form. Algebraic means it is of the form x raised to the power something or y raised to the power something. So suppose we have a given differential equation of the type f of d dash z equal to f of xy, that is called the symbolic form of the equation. And firstly we find the complementary function, and then we work on to find the particular integral. So formula for the particular integral is given by in this way: 1 upon f of d dash x raised to the power n y raised to the power n. Okay. So when the function is of the form x raised to the power something or y raised to the power something, or both terms are involved, then we have to apply this method. So मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे जो टर्म प्रेजेंट होगी उसमें d रहेगा और d डैश रहेगा. ओके, तो उसमें से आपको देखना है कि वो टर्म जिसके डिग्री सबसे कम है. सपोज अगर आपकी टर्म इस फॉर्म में है डी स्क्वायर, लेकिन इसमें वो देखने का भी हमको काम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि इस इक्वेशन का जो फॉर्म है, इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म हैज अ सेम डिग्री, तो इसीलिए सभी टर्म की डिग्री क्या होगी, सेम होगी. तो यहाँ पे हमको पावर देखने का कुछ काम ही नहीं है. तो फिर यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वहां पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन में डी भी प्रेजेंट रहेगा और डी डैश भी प्रेजेंट रहेगा. तो कुछ टर्म ऐसे होंगे कि जिसमें सिर्फ डी रहेगा, कुछ टर्म ऐसे होंगे कि जिसमें डी डैश रहेगा, और कुछ टर्म ऐसी रहेंगी जिसमें मिक्स टर्म होगी. तो उसमें से कोई भी एक टर्म आपको कॉमन लेना है और एक टर्म को आपको वन करना है. ओके, मतलब सपोज अगर टर्म इस टाइप की है डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इन दिस वे. तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, कोई भी आपको ये कॉमन लेना है. अभी कॉमन क्या लेंगे आप, तो एक तो आप कॉमन डी लेंगे जो भी पावर रहेगा, या डी डैश लेंगे, डी द पावर ऑफ डी और पावर ऑफ डी डैश, मिक्स नहीं लेना है. एक तो आप सिर्फ डी को कॉमन निकालेंगे या डी डैश को कॉमन निकालेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से आप करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि डी और डी डैश अगर निकालना है तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे करेंगे हम जिसमें डी निकालेंगे, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे करेंगे हम जिसमें डी डैश निकालेंगे. लेकिन ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को गलत कर देगा. आपको कुछ स्पेसिफिक मेथड है जिसका यूज करके आपको देखना है कि आपको क्या कॉमन निकालना है. तो स्पेसिफिक मेथड क्या है, तो यहाँ पे जो टर्म रहेगी वहां पर आपको x का कुछ पावर प्रेजेंट रहेगा और y का कुछ पावर प्रेजेंट रहेगा. तभी क्या होगा, x का m और n ये कंडीशन बन सकती है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर है. तो x का पावर और y का पावर क्या होगा, सेम हो गया. तो इस केस में आप d की टर्म को कॉमन ले सकते
और डी डैश को भी कॉमन ले सकते हैं। सो देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर दोनों टर्म के पावर सेम है तो आप डी को भी कॉमन दे सकते हैं, मतलब जिस टर्म में डी प्रेजेंट होगा वो पूरी टर्म, या जिस टर्म में डी डैश प्रेजेंट रहेगा वो पूरी टर्म। ये होगी पहली केस। बाद में अगर ये नहीं है, मतलब पावर इसका सेम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर होगा वो टर्म आपको कॉमन निकालनी है। अभी मैक्सिमम पावर मतलब किसका, तो सपोज x का पावर मैक्सिमम है एज कंपेयर टू y, मतलब x का पावर सपोज 3 है और y का पावर 2 है। x का पावर 3 है और y का पावर कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3। तो 3 किसका पावर है, x का पावर। तो x मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं d। तो इस कंडीशन में आपको d को कॉमन निकालना है। ओके। और सपोज अगर y का पावर मैक्सिमम है तो y मतलब क्या होता है, y y एसोसिएट विद द डेरिवेटिव d डैश, बिकॉज़ d डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे आपको d डैश कॉमन निकालना है। ओके। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अपने मन से नहीं करना है आपको, या कभी d बोलेगा तो d निकालेंगे या d डैश बोलेंगे तो d डैश निकालेंगे। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। प्रॉब्लम में अगर दोनों टर्म के पावर सेम है तो आपको क्या करना है, डी भी निकाल सकते हैं या डी डैश भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पावर चेंज हुए, पावर अगर सेम नहीं है, तो जिसका पावर मैक्सिमम होगा एसोसिएट विथ जिस वेरिएबल पे जो डेरिवेटिव एसोसिएट होता है वो आपको कॉमन निकालना है। मतलब डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का पावर अगर ग्रेटर होगा तो हम डी निकालेंगे। और y मतलब क्या, डी डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का पावर अगर ग्रेटर होगा तो हम क्या निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से कुछ टर्म कॉमन निकालनी है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ कॉमन निकालेंगे तो आपको एक बचेगा 1 और कुछ फंक्शन बचेगा जिसमें डी और डी डैश प्रेजेंट रहेगी, मतलब इस टाइप में 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी डी डैश। ये टर्म एज इट इज, ठीक है। फिर हम इस टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी 1 प्लस फाइव ऑफ डी डी डैश रेज टू द पावर -1। फिर हमको क्या करना है, ये जो टर्म है इसको हमको एक्सपांड करना है बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके। एक्सपांड द आरएचएस यूजिंग अ बायनोमियल एक्सपेंशन। अभी बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला आपको जनरल फार्मूला मालूम होगा कि फार्मूला इस टाइप में होता है, वो a प्लस बी रेज टू द पावर n। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्म तो वन ही करना है। तो हमने ये दो रिजल्ट जो है वो आपने ऑलरेडी डिस्कस की है यूनिट नंबर 1 में, जो कि रिजल्ट इस टाइप की है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली टर्म 1 रहेगी, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। और दूसरा रिजल्ट आता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है आपको, सेम टर्म रहेगी, टर्म सेम रहेगी और सिर्फ यहाँ पर सभी टर्म क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ दो ही रिजल्ट यूज करना है। ऑलरेडी हमने ये यूनिट 1 में यूज किया था। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन का कुछ स्पेसिफिक केसेस है और आपको जब भी मिलेगा हर कंडीशन में आपको एक टर्म 1 ही मिलेगी, तो 1 प्लस समथिंग, तो जो समथिंग रहेगा उसको क्या कंसीडर करेंगे हम, x। तो फार्मूला इस टाइप का है, अगर प्लस है तो वी गेट अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पे फार्मूले में क्या हो रहा है, x के पावर इंक्रीज हो रही है। पहला x का पावर 0 है मतलब 1, फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी सेम टर्म ही है, टर्म जो है वो वही टर्म है, लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव होता है तो ऑल टर्म्स क्या करने हैं आपको, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे और इसको टर्म बाय टर्म इस पे ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, अगर कहीं पर डी है तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर डी डैश होता है तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और अगर रेसिप्रोकल आता है मतलब 1 अपॉन डी आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और 1 अपॉन डी डैश आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसका यूज करके हम टर्म बाय टर्म इसको ऑपरेट करेंगे। और जब तक ऑल डी एंड डी डैश एलिमिनेट नहीं होते, जब तक ये पूरे एलिमिनेट नहीं होते तब तक आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके। तो इस टाइप से आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। कौन से प्रॉब्लम, इस ये केस हम कब यूज करेंगे, जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो टर्म क्या रहेगी, वो रहेगा
ऑलजेब्रिक टर्म मतलब x और y के पावर। जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म वहां प्रेजेंट होना चाहिए, एक टर्म भी हो सकती है, मतलब x रेज टू द पावर m भी हो सकता है, y रेज टू द पावर n भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो जैसे ही आपको प्रॉब्लम में कुछ मिलता है उस तरीके से क्या करना है आपको, उसको थोड़ा चेंज करना है। तो ये हो गई हमारी मेथड। अभी ये मेथड डिस्कस करके हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसी मेथड का यूज करना है हमको इस प्रॉब्लम में। सो एग्जांपल इज सॉल्व del 2z by del x square plus del 2z del x del y minus 6 into del 2z by del y square is equal to x plus y। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो इक्वेशन है वो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल क्यों है, क्योंकि सभी डेरिवेटिव पार्शियल है, तो इसलिए वो हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये होमोजेनियस है क्या, तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर है और यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर है, तो ये हो गया होमोजेनियस। बाद में कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1 और इसका कितना है -6, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो गए। मतलब ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is del 2z by del x square plus del 2z del x del y minus 6 into del 2z by del y square is equal to x plus y। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, which is linear partial differential equation, और इसको होमोजेनियस भी बोल सकते हैं, तो विच इज होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप थोड़ा डिटेल में भी उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसका यूज करके हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड साइड के टर्म का यूज करके हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स complete solution is given by, हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंशियल का डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, z, जिसके डेरिवेटिव निकलते हैं, तो ये z का आंसर होगा, और इसका आंसर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। अभी ये सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। लेकिन ये करने के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो आपको d और d डैश के फॉर्म में चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को क्या करना है, हमको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो वहां पर हम d लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो वहां पे क्या लिखेंगे, हम d लिखेंगे, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर y है तो वहां पे क्या लिखेंगे, हम d डैश लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे करेंगे हम, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, कैन बी रिटन इन symbolic form, symbolic form as। ओके, तो इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हमको d यूज करना है, लेकिन कितने डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको d स्क्वायर लिखेंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, d स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर 2 डेरिवेटिव है, लेकिन एक x से है और एक y से है, तो एक को बोलेंगे हम d और एक को बोलेंगे d डैश, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका d इंटू डी डैश। और यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव किससे, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा d डैश का स्क्वायर, और z जो है वो कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, और विच इज इक्वल टू क्या बचेगा, x प्लस वाई। ओके, तो इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा, फर्स्ट टर्म कौन सी थी हमारी, del 2z by del x स्क्वायर, तो वहां पे x है तो d, और डबल है तो इसके लिए हमने बोला उसको d स्क्वायर। दूसरी टर्म कौन सी है, एक x से है एक y से है, तो x के लिए d और y के लिए d डैश मिक्स हो गए। लास्ट टर्म थी -6 इंटू, दो डेरिवेटिव
विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो वाई मतलब डी डैश और 2 है मतलब सेकेंड ऑर्डर डी डैश स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा z बाहर और इक्वल टू बन जाएगा x प्लस वाई, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, और हमको दो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, और सेकंड पार्ट हमारा रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। तो फर्स्ट इज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप पिछले लेक्चर कुछ रिवाइज कर ले कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की कौन सी मेथड है। यहाँ पे मैं अभी मेथड डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के दिखाऊंगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो इक्वेशन है उसका हमको लेफ्ट हैंड साइड की पार्ट ही यूज करना है। मतलब राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसके जगह पे हमको जीरो रखना है, और इसका हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। सो ऑक्सिलरी, वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, जहाँ पे डी है वहां पर आपको m लिखना है, और जहाँ पर डी डैश है वहां पर आपको 1 लिखना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डी है तो m, और यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे m ही मिलेगा आपको, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 6। ओके, बाद में राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको क्या करना है आपको, जीरो करना है। इसको मैंने जीरो कर दिया, और ये जो z यहाँ पे बचेगा, ये z मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। सपोज अगर यहाँ पे z है और z मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो जीरो बाय z क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ये z निकलने का भी काम नहीं है। तो अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, और आपको मालूम है कि इक्वेशन की जितनी ऑर्डर होती है उतने इसको रूट्स मिलते हैं। तो इसके रूट्स आपको निकालना है, सिंपल तरीका है, कैलसी पे इक्वेशन आप इनपुट कर दो और आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर वाइज निकाल के दिखता हूँ कि इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट टर्म देखनी है। तो लास्ट टर्म जो है मेरे पास वो है -6, ठीक है, और मिडिल टर्म जो है हमारे पास ये है 1। तो आपको ऐसे दो टर्म देखना है कि जिसका प्रोडक्ट ए होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये हो जाएगी। तो मेरे पास दो टर्म है, 3 और -2। सो 3 और -2 अगर करूंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे -6, और 3 -2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1। तो ये स्प्लिट करेंगे हम मिडिल टर्म को, मतलब प्लस 1m, m मतलब 1m, तो 1m को कैसे लिखेंगे हम, 3m - 2m। तो ये लॉन्ग मेथड है, कैलकुलेटेड मेथड। लेकिन अगर आपको ये मेथड करना ही नहीं है तो आप कैलसी पे इक्वेशन इनपुट कर दो, आपको डायरेक्ट m के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे बाय प्रोसीजर जाएंगे। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एम स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, और ये जो m है इसको मैं स्प्लिट करता हूँ 3m - 2m, लिख सकते हैं हम। 3 - 2 कितना होता है 1, और -6 एज इट इज। इसके बाद मैं इसके दो पेयर बनाता हूँ, ये हो गई फर्स्ट पेयर और हो गई सेकंड पेयर। तो पहले पेयर से मैं m कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा m+3, m कॉमन निकालने के बाद। और यहाँ से मैं -2 को कॉमन लिख रहा हूँ, तो -2 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1, माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये और ये ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, तभी ये मेथड आपके अप्लाई हो जाएगी वहां पर। तो इस ब्रैकेट को भी मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये मिल जाएगा मुझे m+3, और दूसरा मिल जाएगा मुझे m-2 रिमेनिंग ब्रैकेट। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज m-2 इक्वल टू 0 हमने कंसिडर कर दिया, या इसको हम कर देंगे, ठीक है, m+3, m+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, m-2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0। तो m की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो m-2 इक्वल टू 0 मतलब 2 उधर चला गया, तो m इज इक्वल टू 2 मिलेगा हमको, और m+3 इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा मुझे -3। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इक्वेशन की ऑर्डर 2 है तो आपको दो रूट्स मिलने चाहिए, दो रूट्स आपको मिल गए।
कैलसिफिक करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म आपको करने का कुछ काम नहीं है, आपको ये डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको रूट्स मिल गए। तो ये रूट्स का यूज करके हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैसे निकालना है। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, एफ ऑफ वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, कितनी बार लिखना है ये, जितने आपके रूट्स है। तो हमारे पास दो रूट्स है तो ये मैं दो बार लिखूंगा, y प्लस एम एक्स। ठीक है, इनको मैं ऐड कर दूंगा। अभी मुझे दोनों फंक्शन अलग अलग चाहिए, तो फॉर सेपरेशन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब उसको सेपरेट अलग अलग करना है मुझे, तो एक फंक्शन को मैं बोलूंगा f1 और दूसरे को मैं बोलूंगा f2। ठीक है, और दोनों रूट्स मेरे पास अलग अलग है, तो एक रूट्स को बोलूंगा मैं m1 और एक को बोलूंगा m2। तो इसको बोलता हूं मैं m1 और इसको बोलता हूं मैं m2। आपको सिंपली क्या करना है, m और m2 की वैल्यू यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। तो y m1 कितना है, सपोज 2, तो ये बन जाएगा प्लस 2x प्लस f2। y m2 कितना है, माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जरूरी नहीं है कि मैंने इसको m1 लिया तो आपको लेना ही है, आप इसको भी m1 कंसीडर कर सकते हैं और इसको m2 कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो टर्म रहेगी, यहाँ पे भी f1 आ सकता है और यहाँ पे भी f2 आ सकता है। तो आप पे डिपेंड है, आपकी जो चॉइस होती है आप उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन आपको दोनों फंक्शन इसी टाइप से मिलेंगे, एक फंक्शन आपको y प्लस 2x मिलेगा और एक मिलेगा आपको y माइनस 3x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर आई थिंक 4, 3 दिए थे हमने, तो इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम में डिस्कस किया है। अगर आप बहुत गैप होगी लेक्चर के बीच में, अगर आप भूल गए हैं तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा स्टडी कर लो, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मेथड क्या है। सो नेक्स्ट हम सेकंड देखेंगे, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रॉब्लम में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम ही रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा जो कि राइट हैंड साइड की फंक्शन होती है। यहाँ पे देखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिंपल हमको फार्मूला मालूम है, जो भी हम पहले यूनिट से लिख रहे, तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, एफ ऑफ डी डी डैश मतलब क्या होता है, एफ ऑफ डी डी डैश मतलब होता है जो टर्म सिंबॉलिक फॉर्म में है वो, और एफ ऑफ एक्स वाई मतलब क्या है, जो टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके अभी वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, तो 1 अपॉन, अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म देखिए और सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए कि कौन सा इक्वेशन है वो जहां पर डी और डी डैश में प्रेजेंट है, ये इक्वेशन 3। तो देखिए ये जो है ये है फंक्शन ऑफ डी डी डैश, जेड को छोड़ दिया तो, क्योंकि इसमें डी और डी डैश है। तो एफ ऑफ डी डी डैश मतलब ये टर्म हो गई, ये जो टर्म है यहाँ पे आपको गिवन, ये हो गई एफ ऑफ डी डी डैश, और ये हो गया आपका इधर का राइट हैंड साइड का एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक फार्मूला बन जाएगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 1 अपॉन, यहाँ पे आ गया हमारा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पे जो टर्म है वो है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी हमने जो थ्योरी में देखा था, मतलब जब हमने मेथड स्टार्ट कर दी थी, तो ये फंक्शन मैंने इस टाइप में लिया था, एक्स रेस टू द पावर एम वाई रेस टू द पावर एन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे एडिशन है, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है, ये भी एक्स का पावर है, यहाँ पर भी वाई का पावर है, और यहाँ का एक्स का पावर है, यहाँ पे भी वाई का पावर है। तो इसीलिए केस तो हमको वही यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये टाइप क्या है, ये कंबाइन केस है, मतलब एक ही बार आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक टर्म, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, आप टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि इसको आप पहले पे ऑपरेट करो, इसको सेकंड पे ऑपरेट करो, फिर आपको दो टर्म मिल जाएगी। लेकिन ये जो हमने केस डिस्कस की है, ये आपको दो बार यूज करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
या मैं आपको जो सेकंड केस यहाँ पे बताऊंगा सेकंड टाइप, तो वो कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। तो एक टर्म को अलग से सॉल्व करो, दूसरे टर्म को अलग से सॉल्व करो। अभी किसी में x है तो d को कॉमन निकालो, एक में अगर y है तो d डैश कॉमन निकालो। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंबाइनली आप पूरी टर्म को देखते हैं तो ये पूरे टर्म में क्या है, पूरे टर्म में x और y की टर्म है, मतलब ये तो पूरी टर्म ही अलजेब्रिक है। तो इसीलिए हम इसको कंबाइनली एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। तो इसको अगर आप एक ही टर्म कंसीडर करेंगे तो आपको एक ही बार वो केस यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम का आंसर भी आपको उस एज कंपेयर टू दैट केस आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मार्क्स तो उतनी है, तो जितना इजी हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है प्रॉब्लम, उतने सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। इसके बाद हमारी जो मेथड है वो हम यूज करेंगे अभी। तो देखो हमारी अगर टाइप 3 का प्रॉब्लम है, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई ना कोई टर्म आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, वो डी हो सकता है या डी डैश हो सकता है, मतलब पूरी टर्म। अगर कॉमन निकालेंगे तो ये मैं पूरी निकालूंगा या पूरी ए निकालूंगा, क्योंकि मुझे वन करना है। मिक्स पे मत जाओ, क्योंकि मिक्स अगर करेंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक तो आपको डी निकालना है सिर्फ जिस टर्म में डी है वो, या आपको वो टर्म निकालना है जिसमें ओनली डी डैश प्रेजेंट है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पावर पे। इसको मैंने अगर कंबाइंड टर्म लेता हूं मैं, तो यहाँ पर x का पावर 1 है और वहां पर y का पावर 1 है, तो दोनों टर्म के पावर तो सेम ही है। तो आपके पास चॉइस अलग अलग है, मतलब आप d को भी निकाल सकते हैं या d डैश को भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म ही कॉमन निकालेंगे। पहली टर्म कौन सी, हमारे डी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्व अभी। तो 1 अपॉन, तो मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन। ठीक है, तो डी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1। सेकेंड टर्म क्या बचेगी यहाँ पर, डी डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाला। तो डी स्क्वायर कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया मैंने, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई की टर्म कॉमन, डिवाइड की टर्म यहाँ पे आ गई। -6, यहाँ पर भी सेम क्या आएगा, डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1 अपॉन, और इसको मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देता हूँ अभी। तो इसको करेंगे हम 1 अपॉन डी स्क्वायर। अभी इस टर्म को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये तो 1 एज इट इज है, प्लस इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डी है और यहाँ पे एक डी है, तो ये डी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी डैश अपॉन डी ओनली, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 6 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और ये टर्म अगर मैंने ऊपर ले ली तो इसका पावर क्या हो जाएगा, रेस्ट टू द पावर -1। गॉट इट, रेस्ट टू द पावर -1। और बाकी की जो टर्म है वो टर्म एज इट इज रहेंगी। कौन सी टर्म है हमारी, वो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो आपको जो टर्म अभी मिली है वो टर्म आपको इस फॉर्म में मिली है, 1 प्लस समथिंग रेस्ट टू द पावर -1। तो 1 प्लस समथिंग रेस्ट टू द पावर -1 अगर है तो हमको यूज करना है अभी बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से मेरे पास यही फार्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। 1 प्लस इसको बोलेंगे हम x, और x का पावर कितनी है, रेस्ट टू द पावर -1। तो ये रिजल्ट का आंसर क्या होता है हमारा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो। ठीक है, सो इसको हम अभी इवेलुएट करेंगे। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इन ब्रैकेट, तो फार्मूला है हमारा 1 माइनस एक्स। एक्स मतलब जो भी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो हमारा ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, डी डैश अपॉन डी -6 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, बाद में क्या आएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर है, मतलब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी डैश अपॉन डी -6 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और उस ब्रैकेट का भी क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर मिलेगा। इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अप टू सो ऑन। अभी कहाँ तक लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ ये तो टर्म तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रही, ये तो कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो कहाँ ना कहाँ तो स्टॉप हो गई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक दो टर्म लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे,
और इसको क्लोज करने के बाद जो भी हमारी बाहर की टर्म रहेगी वो टर्म को क्या करेंगे हम वहां पे लिख देंगे। तो हमारी जो बाहर की टर्म है वो कौन सी है, x प्लस वाई की, जो हमारा फंक्शन है x प्लस वाई। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि ये एक्सपांड करना है तो कब तक करना है। तो जो भी एक्सपांशन है वो सब इस पावर पे डिपेंड है। जैसे कि अगर मुझे अगर x का डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा 1, और मैं इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0, फोर्थ डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0। और ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की टर्म है, तो अगर कहीं पर भी मैं 0 ऐड करता हूँ या 0 माइनस करता हूँ तो आंसर में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये वहां तक ही एक्सपांड करना है जब तक आपका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो सपोज अगर मैं पहली टर्म देखता हूँ x, तो x का अगर मैं d से डेरिवेटिव लेता हूँ तो पहला डेरिवेटिव पॉसिबल है सिर्फ, और दूसरा डेरिवेटिव तो जीरो होता है। मतलब मुझे सिर्फ x के लिए d का पावर जहां पर 1 है उसमें ही इंटरेस्ट है, बाकी का मैं यूज ही नहीं करूंगा। और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, y के बारे में अगर सोचेंगे आप तो y का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, d डैश से करेंगे तो d डैश ऑफ y, d डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी कितना होगा 1 ही होगा। और इसका भी अगर मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। मतलब यहाँ से ये डबल के बाद सब 0 हो रहा और ये भी डबल के बाद सब 0 हो रहा। मतलब हमें जो इंटरेस्ट लेना है जिस टर्म में, वो टर्म हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की, चाहे वो डी है चाहे डी डैश है। तो हम यहाँ पे वही टर्म यूज करेंगे जहां पर डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम वही टर्म यहाँ पे अभी लेंगे, तो 1/d²। इसको नहीं लेना है क्योंकि इसको नेग्लेक्ट मत करो आप, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है, ये डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है, मतलब इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन निकलता है। ओके, 1 1 तो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे देखेंगे, अब नीचे की टर्म मत देखो साहब, आपको सिर्फ ऊपर देखना है, ऊपर मतलब डेरिवेटिव। तो डी डैश मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है तो इसीलिए ये टर्म एज इट इज रहेंगी। सो डी डैश अपॉन डी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है सेकंड डेरिवेटिव, और आपको मालूम है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे भी तो उसका आंसर तो जीरो ही आना है, और 0 प्लस 0 माइनस 0 करेंगे तो कुछ चेंज होगा प्रॉब्लम में, नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है। बाद में ये टर्म देखिए आप, प्लस डी डैश अपॉन डी, पॉसिबल है, आएगा प्लस डी डैश अपॉन डी एस, लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो पहले आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको स्क्वायर का फार्मूला भी मालूम है तो इसको सपोज अगर मैं ए बोलूंगा और इसको अगर मैं बी बोलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। और फार्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो इस टर्म का स्क्वायर होगा, ये हो गया डी डैश का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर तो जीरो होता है तो ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी। इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ऑलरेडी तो यहाँ पर स्क्वायर ही है तो उसका तो पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। और इसका अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये 2 और ये ए, तो यहाँ पे 3 बन गए। अब ये पहला ही जीरो दूसरा ही जीरो हो रहा तो थर्ड तो जीरो होगा ही, तो इसका भी हमको काम नहीं है। तो यहाँ से जो भी टर्म निकलेगी वो सभी टर्म के डेरिवेटिव क्या आने हैं, जीरो ही आने हैं। इसीलिए हम इसको भी क्या करेंगे, हम निग्लेक्ट कर देंगे। अभी इसमें ही कोई टर्म अगर आपको नहीं मिलती है तो इसके बाद आपको कहीं पर भी नॉन जीरो टर्म नहीं मिलेंगी, सभी टर्म मिलेगी लेकिन सभी के डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे अभी, क्योंकि ऑल द टर्म्स हैज अ जीरो डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कि निग्लेक्टिंग, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, neglecting second and higher power of d and d dash। क्यों,
क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं डी या डी डैश से तो आंसर 0 आना चाहिए, और उसके बाद भी लेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमको सिर्फ ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने का जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। तो हम इस टर्म को एज इट इज लिखते हैं अभी, 1/d²। अभी सिंपली क्या करो आप, इसको ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस डी डैश अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 1/d², ये हो गया x, ये हो गया y माइनस, अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मुझे ऊपर की टर्म ऑपरेट करनी है तो मैं नीचे की टर्म एज इट इज लेता हूँ, 1 प्लस डी। डी डैश, डी डैश मतलब क्या होता है, डी डैश मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका हमको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहली टर्म है x, और आपको मालूम है कि अगर मुझे y से डेरिवेटिव लेना है तो x क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, प्लस y का डेरिवेटिव लेना है मुझे y से, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव y से कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, मतलब हमारा एक इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया बाद में। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, आपको तब तक ये सॉल्व करना है जब तक पूरे d या पूरे d डैश यहाँ से एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो ये 1/d² एज इट इज, 1 प्लस वाई एज इट इज माइनस, ये क्या हो गया, 1/d। और 1/d मतलब क्या होता है, 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/d मतलब डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे टर्म कौन सी बची, 1, बराबर है। सो विच इज इक्वल टू, ये मिल गया हमको 1/d² x प्लस वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, plus x minus x is cancel, so remaining term is only y, okay। So we get 1/d² of y। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी d² प्रेजेंट है। तो आपको मालूम है कि d मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1/d मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d का स्क्वायर है, मतलब डबल इंटीग्रेशन। तो डबल तो पॉसिबल नहीं है एकदम से, तो हम एक एक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेपरेट करता हूँ, 1/d इंटू 1/d इंटू वाई, ओके। सो पहला 1/d हम एज इट इज रखेंगे, और हम 1/d मतलब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अभी y का, लेकिन किस से, d है मतलब x से ही आएगा, तो ये आएगा 1/d। अभी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भी क्या है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव है, तो अगर एक टर्म से लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल टर्म ही है। तो इसीलिए अगर मैं x से लेता हूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो इसीलिए y आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और बची हुई जो टर्म है वो है dx। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/d y, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, x, बराबर। ये टर्म मिल गई। अगेन एक डेरिवेटिव वहां पे बाकी है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू, अभी या डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, या मुझे मालूम है कि यहाँ पे d मतलब सिर्फ x पे हम ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि x का ही फंक्शन है ये, तो y तो हो गया कांस्टेंट, तो y को मैं बाहर भी ले सकता हूँ। तो मैंने वहां y को बाहर ही ले लिया, आप पहले भी ले सकते थे y को बाहर, यहाँ से भी आप y को बाहर लेकर सिर्फ 1 करते थे तो भी चलता था, तभी ले लिया हमने। तो y एज इट इज, और अगेन 1/d मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन, बराबर। सो y एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना रहता, x² बाय 2। तो आपको जो आंसर मिला वो कौन सा मिला, x² y बाय 2। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे देखिए अभी कहीं पर भी d नहीं है और कहीं पर भी d डैश नहीं है, तो जो भी हमारा ये आंसर है ये हमारा है फाइनल आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो हम इक्वेशन देखेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कितना बोला था हमने, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बोला था 4, तो इसको बोलेंगे हम 5, इक्वेशन नंबर 5। तो इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। सो देयरफॉर, सो इक्वेशन 1 हमने देखा, इक्वेशन 2 हमने देखा था कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो जो z की वैल्यू मिलेगी आपको वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉम्बिनेशन, ओके। सो z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ऑलरेडी निकाला है इक्वेशन नंबर 4 में,
सो इक्वेशन नंबर 4 एक बार देख लीजिए, तो उसका आंसर है हमारे पास y प्लस 2x प्लस एफ ऑफ y माइनस 3x। आप स्क्रॉल करके या प्रीवियस जो हमने देखा था उसमें चेक कर लो आप, आपको यही आंसर मिलेगा। प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई बाय 2। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑलवेज क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस टाइप से आप जिस लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट का इक्वेशन है, अगर राइट हैंड साइड की टर्म, जो राइट हैंड साइड में आपको टर्म मिलती है, वो अगर ऑलजेब्रिक है, ऑलजेब्रिक मतलब पावर ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको ये टाइप यूज करना है। और इस टाइप से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम देख लीजिए एक बार, इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए डबल से। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पे इसी टाइप का हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्रॉब्लम लेंगे, जो कि मिक्स टाइप का होगा। मिक्स टाइप का मतलब ऐसा हम प्रॉब्लम लेंगे जिसमें टाइप 3 भी हम यूज करेंगे और साथ में टाइप 1 या टाइप 2 भी यूज करेंगे, क्योंकि मिक्स प्रॉब्लम भी आपको पूछते हैं। तो उसमें से क्या होगा कि ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम में मैंने एक बार और की थी कि मैंने x प्लस वाई लिया था, मतलब x का पावर और y का पावर क्या लिया था मैंने, सेम। तो इसीलिए आपको दो दो चॉइस थी। तो हम ऐसा भी प्रॉब्लम लेंगे कि जहाँ पे इसके पावर अलग अलग होंगे, मतलब इस टाइप का एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, जिसमें से फिर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कॉमन क्या निकालना है, डी निकालना है और डी डैश निकालना है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।